Hey students, how are you? I hope you all are fine and doing study at home. So this is the video of class 9th biology, and here, as you know, we are revising the chapter, and today's topic is bulk transport, which is taken from chapter 1, fundamental unit of life, and this is all about the cell. So we know that cell is the structural and functional unit of all living organisms, and basic structure of cell shows the presence of cell membrane and nucleus and cytoplasm. Okay, you can see in this diagram. So basically we were talking about the cell membrane, and we know that the cell membrane is the outermost boundary of the cell, and it is a kind of semi-permeable or selectively permeable membrane because it selects and gives the permission to the selected substances, and because it helps in the transportation of substances in and out of the cell. So we are studying about the transportation of substance across the cell membrane, and we know that the transportation across the cell membrane is of three types. Basically, one is active transport, and second is passive transport, and third we are going to study about bulk transport. Okay, so in active transport it needs energy, in passive transport it works on concentration gradient, and bulk transport it is also a kind of active transport. It needs energy, but in this process of transportation the vesicles are involved. Okay, so let's talk about the bulk transport now. Okay, bulk transport occurs when molecules are too large to move through a channel protein or by using a carrier protein. Then the vesicles are used to move the bulk molecule. bulk means होता है large या फिर much. ठीक है, much या फिर लार्ज. जब कोई सबस्टेंस इतना लार्ज होता है या इतना बड़ा होता है कि वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो फिर उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसाइकल्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड इन वेसाइकल्स के थ्रू ये जो लार्ज और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वेसाइकल्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, तो बल्क ट्रांसपोर्ट is a kind of transport which needs vesicle to transport the substance across the cell membrane by making vesicles. Okay, so it is of two type. ये दो तरीके से हो सकता है. जैसे कोई सेल है, सपोज एक सेल है, तो इसमें कोई चीज़ एंटर भी कर सकती है, या फिर there is the condition in which the things have to leave the cell. ठीक है, सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स को एंटर करना होता है, सेल से बाहर भी निकालना होता है, रिलीज़ भी करना होता है. तो ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरीके से हो सकता है. एक मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इनटू द सेल. ठीक है, जब कोई सबस्टेंस सेल के अंदर आ रहा हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, उस बल्क ट्रांसपोर्ट को आप क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस. Okay, when something is entering into the cell, and in case of movement of materials out of the cell से बाहर निकलना, and that will be called as exocytosis, and both require energy from the cell. और दोनों ही प्रोसेस में, एंडोसाइटोसिस में भी एक्सोसाइटोसिस में भी, दोनों केस में आप बल्क ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है. दे नीड एनर्जी. ओके, सो we'll talk about the endocytosis and exocytosis. How does it take place? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एंडोसाइटोसिस फर्स्ट. सो देखिए, बाहर कोई भी सबस्टेंस है, सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं, तो ये बाहर है. तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के नियर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से इन्वेजिनेट होने लगेगी, अंदर की ओर धंसने लगेगी, और इट विल मेक अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. इस तरीके से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, अब उस पाउच में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अंदर आना है, दे विल एंटर इनटू दैट पाउच. वो पाउच के अंदर
अंदर आ जाएंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से ये अंदर इन्वेजिनेट होते 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 ये क्या हो जाएगी, इट विल डिटैच फ्रॉम हियर, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। ठीक है, डिटैच होकर क्या होगा, इट विल ये जो पाउच बना था ये अंदर की ओर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से बाहर की ओर रिज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से इस तरीके के एक कंटेनर का, एक पाउच का फॉर्मेशन होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेसाइकल। ठीक है, तो उसमें अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेसाइकल के थ्रू जो होता है वो सबस्टेंस क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो सेल मेम्ब्रेन से ही वो वेसाइकल्स बनती हैं। ठीक है, एक पाउच, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसके थ्रू जो है वो सबस्टेंस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। तो लाइकवाइज यू कैन सी हाउ सिंपली this endocytosis takes place by the formation of vesicles, and that vesicles form because of the invagination of the cell membrane, and after invagination it make the pouch like structure and it detaches from there। यहाँ से कटकर अलग हो जाती है तो वेसाइकिल अंदर आ जाती है और सेल मेम्ब्रेन वापस जुड़कर कंप्लीट हो जाती है। सो दैट्स हाउ एंडोसाइटोसिस टेक्स प्लेस। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि कोई भी सबस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को, बहुत बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसको एंट्री लेनी है तो इस तरीके से ये सेल जो है उसको एंटर कर लेती है। ठीक है, अब ये एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरीके की होती है। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, देखिए अगर जो सबस्टेंस एंटर हो रहा है सेल के अंदर, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो हम उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, राइट। एंड इफ़ द सबस्टेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड के फॉर्म में तो हम उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। Okay, so we'll talk about the pinocytosis and phagocytosis. So you can say that एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप। तो आप लिख सकते हो कि एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरीके की हो गई। एक, अगर कोई लिक्विड सबस्टेंस सेल में एंटर हो रहा है तो आप उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड सबस्टेंस सेल्स के अंदर आ रहा है वेसाइकिल के थ्रू तो हम उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स टू ईट। फैगो का मतलब होता है टू ईट, खाना। ठीक है, टू ईट। तो हम खाते क्या हैं, सॉलिड सबस्टेंस को हम बोलते हैं कि कोई भी सॉलिड सबस्टेंस को खाते हैं, मतलब इनटेक करते हैं तो हम बोलते हैं आई एम ईटिंग। ओके, फैगो मीन्स ईटिंग। और जब भी कोई लिक्विड सबस्टेंस हम टेकअप करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग। तो पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। पिनो का मतलब होता है टू ड्रिंक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ड्रिंकिंग का मतलब समथिंग लिक्विडी इज एंटरिंग इनटू द सेल, एंड फैगो का मतलब समथिंग सॉलिड इज एंटरिंग इनटू द सेल। ओके, तो पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग एंड फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल ईटिंग। ओके, so endocytosis is of two type on the basis of the state of matter जो भी सबस्टेंस है वो किस फॉर्म में अंदर आ रहा है। अगर वो सॉलिड के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में अगर एंटर हो रहा है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर वो लिक्विड के फॉर्म में हो रहा है तो हम उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये जो वेसाइकिल बनती है फैगोसाइटोसिस में उसको फैगोसोम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैगोसोम। और पिनोसाइटोसिस के केस में जो वेसाइकिल बनती है उसको हम बोलते हैं पिनोसोम बोलते हैं। ओके, वेसाइकिल ही है, बस उसका नाम हम लोगों ने दे दिया है एक स्पेशल। तो फैगोसाइटोसिस में जो वेसाइकिल्स बनेंगी उसको हम फैगोसोम बोलेंगे, और जो पिनोसाइटोसिस में जो वेसाइकिल बनेंगे हम उनको पिनोसोम टेक्निकली बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। अब हम एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे। तो एक्सोसाइटोसिस, एक्स का मतलब आप समझ सकते हैं एग्जिट। ठीक है, एक्स से आप याद रख सकते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो अगर सेल से कोई चीज़ बाहर निकलना चाहती है, लार्ज अमाउंट में है, बल्क अमाउंट में है, और वेसाइकिल्स के थ्रू अगर वो बाहर निकलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर का पार्ट है और ये
सेल के अंदर का पार्ट है, राइट। तो मान लीजिए कि कोई सबस्टेंस है, सम एनी काइंड ऑफ, मान लीजिए हार्मोन है, एंजाइम है, कोई भी कोई ऑयल है, एनीथिंग जो म्यूकस है जो सेल के अंदर बना है और वो सेल के बाहर डिस्चार्ज करना होना चाहता है, ठीक है, उसको सेल से बाहर डिस्चार्ज करना है। तो क्या होगा कि सेल के अंदर उस सबस्टेंस के चारों ओर क्या बन जाएगी, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग बन जाएगी, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड वेसाइकल, एक वेसाइकल बन जाएगी। इस तरीके से जिस सबस्टेंस को सेल से बाहर निकालना है उसके चारों ओर एक कवरिंग बन जाएगी, ठीक है। उसका अब ये एक पॉकेट, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर बन गया, हम उसको क्या बोलेंगे, वेसाइकल बोलेंगे, और जैसे उसमें बनी थी वेसाइकल, ठीक है। उसके अंदर जो भी है, जैसे सेल के अंदर से वेस्ट मटेरियल भी निकालना होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वेस्ट मटेरियल का। सपोज कोई वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर आपको रिलीज़ करवाना है, तो उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग बन जाएगी, तो एक वेसाइकल बन जाएगी, और फिर ये वेसाइकल धीरे धीरे मूव करेगी, इट विल मूव स्लोली टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर ये क्या होगा, इट विल मर्ज विद द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर ये क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, और मर्ज होने के बाद फिर यहाँ से ओपनिंग हो जाएगी, यहाँ से, ठीक है। मर्ज होने के बाद लाइकवाइज ये सेल मेम्ब्रेन थी और इस तरीके से ये यहाँ पे वेसाइकल जाके अटैच हो गई। तो क्या होगा कि एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन थी वो वहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और डिटैच होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ओपनिंग बन रही है, यू कैन सी, यहाँ पर एक ओपनिंग बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी शो कर है, यहाँ पे ओपनिंग है, इस तरीके से बन जाएगी। और फिर यहाँ जो इस पाउच में जो भी सबस्टेंस था, मान लीजिए वेस्ट मटेरियल था, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, इट विल मूव आउट, ओके, इट विल मूव आउट। लाइकवाइज यू कैन सी, यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो लाइकवाइज द एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच द सबस्टेंसेस गेट आउट फ्रॉम द सेल, ओके। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का, ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्वेजिनेशन के थ्रू वेसाइकल बनती है और फिर ये सबस्टेंस सेल के अंदर आ जाता है, और इस तरीके से पहले जिसको बाहर निकाला वो वेसाइकल बनता है, धीरे धीरे वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, फिर वहाँ पे डिफ्यूज़ होती है, फिर उसके बाद वहाँ से ओपनिंग हो जाती है और वो बाहर निकल आता है, ओके। एंडोसाइटोसिस जो फैगोसाइटोसिस होती है उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है फूड इनगल्फमेंट बाय अमीबा, ठीक है। अमीबा जो है फूड इनगल्फ जो करता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये उसकी सेल है, ठीक है, सेल बॉडी है। तो ये अमीबा जो है वो फूड को, सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में जब सॉलिड सबस्टेंस को हम एंटर करते हैं सेल के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस यानी कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है अमीबा जो है वो फूड को इनगल्फ करता है। लाइकवाइज यू कैन सी, ये फूड मैटर है कोई, तो इसके चारों ओर इस तरीके से देखिए इन्वेजिनेशन बन रहा है, और धीरे धीरे ये इन्वेजिनेशन होते होते ये पूरी मेम्ब्रेन यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी और ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट इनगल्फ्स द फूड। एंड ये अब ये जो वेसाइकल बनेगी उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर फूड है और यहाँ पे डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो भी मटेरियल है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो भी वेस्ट मटेरियल इस अमीबा की बॉडी बनेगा वो फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, सेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा। Bulk transport is of two types, endocytosis and exocytosis, and then further endocytosis is of two types, pinocytosis and phagocytosis, okay। एंड दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, okay। So this is all about for this video. In the next video we'll talk about the another topic from this chapter. Till then, thank you.